Good afternoon, everybody. I take this golden opportunity on behalf of ICAI to welcome all of you attending this conference. ICA Payal Mohta, welcome once again to all of you. Diet plays a very important role in our daily life and healthy life. Our thoughts are governed by what we eat. In COVID times, we are really thankful and lucky to have Dr. Khushbu Gupta, a corona warrior who has come forward to share her experience and knowledge with the CA community on diet as an immunity booster. Dr. Khushbu Gupta is a freelancer, nutritionist, and dietitian who is a keynote speaker and founder of YouTube channel WizCore. Currently, she is working as assistant professor in Trilok Singh Titi College, Lakshmangarh, Sikar. She has teaching experience of about 6 years in the field of food and nutrition. And she has been worked in different places such as Banastali Vidyapeeth, Krishi Vigyan Kendra, Kota, Modi University, Lakshmangarh, Sikar in different positions. She has published about 30 research papers in different national and international journals. She has won many awards in different seminars and conferences for her contribution in scientific world. She has won gold medal from Banastali Vidyapeeth, Nivai. She is state president of YNDC chapter of Rajasthan. I also welcome our convener Anushri Agarwal, who is an All India 6th rank holder. She is currently heading Unicom, a institute which is providing training in the commerce fields. They have trained around 50,000 students in various fields. In this corona times, life has really been very tough. And I really appreciate and feel lucky that we have been a part of this seminar in which we would be getting the guidance from Dr. Khushbu Gupta on how to take care of our family in terms of diet as an immunity booster. Thank you. Thank you so much, Payal ma'am. It has been a pleasure for me as well to interview Dr. Khushbu Gupta and get to know about how to boost immunity in these times. कोरोना का समय सभी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट जो बज़ वर्ड आज है पूरी दुनिया में वो इम्यूनिटी है एंड दैट इज व्हाई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा सितंबर मंथ हेल्थ के ऊपर डेडिकेट किया था. So I welcome first of all Dr. Khushbu Gupta in this conference, and I extend my heartiest thanks to Payal ma'am to give such a wonderful introduction of both of us. Ma'am, welcome Khushbu ma'am. Thank you, Anushri, and thank you ICAI Jaipur for providing me an opportunity to contact with all of you. So ma'am, how are you doing? First of all, I like to ask you. I'm good. मैम जैसे कि सभी के मन में एक सवाल सबसे बड़ा आता है कि कोरोना से बचने का एक उपाय है वो है इम्यूनिटी. अगर बिल्कुल सही है तो चाहे आपको कोरोना हो तो आप आसानी से निकल सकते हो, अगर इम्यूनिटी खराब है तो कोरोना की अगर हल्का सा आपको इन्फेक्शन हुआ तब भी आपके लिए हो सकता है. तो सबसे इम्यूनिटी होता क्या है और हाउ वी कैन बूस्ट इम्यूनिटी? देखिए, इम्यूनिटी वर्ड तो सब लोग जान चुके हैं क्योंकि हम जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस की बात करें या ऑनलाइन वेबिनार की बात कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे डाइटिशियंस हैं, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हर कोई इम्यूनिटी की बात कर रहा है. तो इम्यूनिटी का मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता. यानी ये जो इम्यूनिटी है वो एक तरीके से वर्क करता है जैसे हमारे देश की रक्षा करते हैं सिपाही बॉर्डर पे कि कोई जो दुश्मन के सैनिक हैं वो हमारे देश में एंटर नहीं कर जाएं और हमारे देश को नुकसान नहीं पहुंचाएं. तो सेम इसी तरीके से शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है या जो सैनिक है वो है हमारी इम्यूनिटी. अगर बाहर से कोई भी चीज हमारे शरीर में एंटर करेगी तो वो कहलाते हैं मेडिकल टर्म में एंटीजेंस. ये फॉरेन मटेरियल हैं जो हमारे शरीर में जाके इन्फेक्शन पैदा करते हैं या बीमारियां पैदा करते हैं. और हमारे शरीर में इन एंटीजन को या जो ये दुश्मन के सैनिक हैं इनको रोकने के लिए जो काम करती हैं सेल्स वो कहलाती हैं इम्यूनिटी सेल्स या जिन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडीज. जैसे ही कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में आएगा वैसे ही शरीर में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है. अब हमारे सैनिक जितने ज्यादा मजबूत होंगे, जितने ज्यादा हेल्दी होंगे, वो उतने लंबे टाइम तक
उस एंटीजन का मुकाबला कर पाएंगे, तो उतने ही लंबे समय तक हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो हम आसानी से उन एंटीजेंस का मुकाबला कर पाएंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे और हम बीमार नहीं होंगे। इसके विपरीत अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली अगर हम हमारे ब्लड की बात करें तो हम इनको मेन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है रेड ब्लड सेल्स, दूसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल्स और तीसरी होती हैं प्लेटलेट्स। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती हैं या न्यूट्रिएंट को कैरी करने का काम करती हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जब हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं, तो जैसे किसी को चोट लगती है, कभी भी खून बह रहा होता है, तो जो थक्का बनता है, जो कोटिंग आ जाती है चोट वाली जगह पर, वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो अगर हमारे शरीर में सही मात्रा में जितनी होनी चाहिए उतनी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, तो हम हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। और इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छी सी डाइट ले रहे हो। अगर डाइट में सब चीजें प्रेजेंट होंगी, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी रहेगी। ओके मैम, दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली जब हम छोटे थे उस हाँ समय जी, स्कूल में बताया जाता था कि आपकी प्लेट में सारे कलर्स होने चाहिए। कहा जाता था बिल्कुल। रेनबो डाइट होती है कि ग्रीन, रेड, येलो, व्हाइट, हर कलर का आपके पास आपकी प्लेट में होना चाहिए स्टफ। लेकिन हाँ, जैसे जैसे बड़े होते गए, हमारी मेमोरी से वो चीज निकलती गई और हमारी जो डाइट है उसमें बहुत ज्यादा फास्ट फूड जो जल्दी से हम कंज्यूम कर पाए, सुबह की भाग दौड़ में कॉर्नफ्लेक्स दूध के साथ निकल जाते हैं या फिर रात का कुछ खा लेते हैं, ऐसा इतना अपनी प्लेट को सजाने पे कभी काम नहीं किया हमने। तो अभी हाँ, वापस से एक नया वर्ड आया है, रेनबो डाइट। सो व्हाट, हाँ। टेल अस समथिंग अबाउट द रेनबो डाइट आल्सो। देखिए, जब हम रेनबो की बात करते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं। केवल बात करने से ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ कितने खुशनुमा से रंग बिखरे हुए हैं। तो वही चीज़ ऐसे है कि जब हम डाइट की बात करेंगे तो हमारी प्लेट के अंदर जितना ज़्यादा कलर होगा, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होगी, हमारी एपेटाइट बढ़ेगी। जितना हम कलरफुल सा खाना देखते हैं, अपने आप माउथ में सलाइवा सिक्रीट होने लगता है। ऐसा नहीं है कि जब हम बाइट को मुँह में रखते हैं, तभी हमारे शरीर की जो प्रोसेसिंग है फूड से रिलेटेड वो शुरू होती है, नहीं। हमारे जो डिफरेंट 5 सेंसेस हैं, जैसे जब हम देखते हैं, जब हम सूंघते हैं, जब हम उसको टच करते हैं, हाथ में आपने लिया भोजन को, तो ये जो सारे सेंसेस हैं, ये ऑलरेडी हमारे शरीर की जो प्रोसेसिंग है उसको स्टार्ट कर देते हैं बिफोर ईटिंग द फूड। तो इसलिए क्या होता है, जितना आपका कलरफुल फूड होगा, उतना ही आपको देखने में अच्छा लगेगा, उसकी स्मेल उतनी ही अच्छी आएगी और उससे क्या होगा, हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम्स हैं, वो सारे सिक्रीट होने लगेंगे। अब इसके साथ मैं बताना चाहूँगी कि हमारे शरीर में जब हम फूड लेते हैं, तो वो एज़ इट इज़ काम नहीं करता है। हमारे शरीर में फूड का डाइजेशन होता है, वो डिफरेंट स्मॉल कंपोनेंट्स में बदलता है और उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है। और जो चीज़ स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फैटी एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं या विटामिन्स और मिनरल्स, जब उनका मेटाबॉलिज्म हो गया है, उसके बाद जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए कारगर हैं। वो ही हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करेंगे, वो ही हमारे शरीर को पोषण प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अगर बहुत सारा फूड खा लिया है और अगर वो शरीर में जाके डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कलरफुल डाइट आप लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका सलाइवा अच्छे से सिक्रीट होगा, सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होंगे, तो वो पहले ही आपका काम कर देंगे कि जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अच्छे से होना है, वो शुरू हो जाएगा। दूसरी बात आती है कि जब हम अलग-अलग कलर की बात करते हैं, तो देखिए नेचर में जो भी चीज़ है, उसमें क्या है कि अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। मेजर अगर हम बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि ये जितनी सारी चीज़ें हैं, वो किसी एक फूड में प्रेज़ेंट हों। बहुत मुश्किल चीज़ है ये, कि हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ एक ही जगह पर समाहित कर दें।
तो इसीलिए नेचर ने क्या किया है कि अलग अलग तरीके के जो कंपोनेंट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, उनको अलग अलग तरीकों की चीजों में, अलग अलग कलर की चीजों में डिवाइड किया है। जैसे अगर हम बात करते हैं ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर में क्या होते हैं, कैरोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपके शरीर में आयरन को बढ़ाते हैं, आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जिन लोगों को नेत्र संबंधी समस्या है या जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमें देखते हैं कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं अभी तक उनको दिखने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ने लगी वो अब शिकायत करने लगते हैं कि हमें सही से दिख नहीं रहा है, चलते समय थोड़ी सी दिक्कत होती है, पढ़ते समय थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये उसको जो है वो इम्प्रूव करने का काम करते हैं। अगर हम रेड कलर की बात करते हैं, हमारे शरीर में जो रेड कलर है वो ब्लड को डिनोट करता है, ठीक है। और जब भी हम ब्लड की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हार्ट की बात आती है कि हमारा दिल जितना अच्छा रहेगा, हम उतने ही लंबे समय तक अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अगर हार्ट हेल्थ हमारी अच्छी होगी तो ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होगी, क्योंकि हार्ट से ही सब चीजें जो है वो नियंत्रित होती हैं एक तरीके से। जो सारा शरीर में ब्लड का रेगुलेशन होता है वो हार्ट से ही होता है। तो अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो जितनी भी रेड कलर की चीजें हैं, जैसे अनार हो गया, चुकंदर हो गया, इन सब चीजों को आपको ऐड करना होगा अपनी डाइट के अंदर। सेम इसी तरीके से अगर आपको अपनी बोन हेल्थ अच्छी रखनी है, व्हाइट ब्लड सेल्स की ग्रोथ अच्छी करनी है, तो जो व्हाइट फूड आइटम्स हैं वो आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हर कलर का अपना एक सिग्निफिकेंस है और हर कलर हमारे शरीर की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे जब हम आप येलो कलर की बात करोगे तो येलो कलर क्या करेगा, उसमें आता है आम आते हैं। और ऑरेंज कलर जो है, येलो ऑरेंज हम जनरली एक साथ बात कर लेते हैं कि जो भी खट्टे फल हैं, सिट्रस फूड आइटम्स जितने भी होंगे, जैसे नींबू है, ऑरेंज है, पपाया है, मौसमी है, ये सब आपके शरीर में विटामिन सी की मात्रा की पूर्ति करेंगे। और कोरोना के टाइम में आपने विटामिन सी का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा कि आपको विटामिन सी लेना है। अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी रहेगी। और एक चीज अगर आपने देखी भी होगी कि आप कितने भी डॉक्टर्स के पास जाएं या जो लोग कोरोना से प्रभावित हुए भी हैं, तो उनको भी विटामिन सी की टैबलेट जो है वो रिकमेंड की गई है कि आपको दिन में एक बार विटामिन सी तो लेना ही है। तो अगर आप येलो ऑरेंज फूड ले रहे हैं तो आप अपनी विटामिन सी की जो मात्रा है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और रेनबो डाइट में जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं तो फूड में न्यूट्रिएंट्स के अलावा कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं जो शरीर को न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो शरीर में थेराप्यूटिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, हमें डिफरेंट तरीके की बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, फंक्शनल फूड्स हैं, ये सब पोषक तत्व तो प्रदान कर ही रहे हैं, लेकिन इनका मेन काम ये होता है कि ये शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं। जी मैम, ये तो ऐसा पूरा का पूरा आपने साइंस समझा दिया। हम कॉमर्स के लोग वैसे भी साइंस में बहुत ही पीछे होते हैं। मैम इसमें एक चीज मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आई कि अगर हमको फूड डाइजेस्ट करना है तो सलाइवा के साथ बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए, तो चबा हाँ, खाना जो बचपन में बोला जाता। तो एक हाँ, बात, जैसे लॉकडाउन में बहुत सबके घर में बहुत अच्छा अच्छा खाना बना, नई नई हाँ, रेसिपी ट्राई की गई, सबने यूट्यूब से ट्राई किया। तो जब हम ऐसी फास्ट फूड बोल दीजिए या फिर थोड़ा स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, ये सब खाते हैं, ये भी अगर हम चबा चबा के खाते हैं अगर अच्छे से मिक्स करके, तो ये इतना नुकसान नहीं करता होगा शायद। खाना चबा के खा रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब फूड के अंदर कोई हेल्दी चीज है ही नहीं तो वो कैसे फायदा कर सकता है? तो हम तो जैसे जैसे हमारे इनकम टैक्स में रास्ता निकालते हैं, हमने सोचा ये भी एक रास्ता निकल गया। नहीं, ये रास्ता केवल इसलिए अच्छा है कि जो फूड के अंदर अनहेल्दी चीजें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, फैट उसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो जब आप उसको अच्छे अच्छे से चबा के खा रहे हैं, वो अच्छे से मिक्स हो रहा है, तो उसका डाइजेशन उतना ही अच्छा होगा हमारे स्टमक में जाके, और उतनी ही ज्यादा मात्रा में आपको कैलोरीज मिलेंगी, आपको फैटी एसिड्स मिलेंगे जो बॉडी में और अच्छे डिपॉजिट होंगे। ओ मैम, तो उसका नुकसान और हो जाएगा
बिल्कुल। जब हम अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, ज़्यादा फैटी फूड्स ले रहे हैं, ज़्यादा शुगरी फूड्स ले रहे हैं या जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनमें केवल ग्लूकोज़ होता है, वो ज़्यादा ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका नुकसान ही होना है। तो चलिए मैम, ये तो ठीक है, ये चीज समझ में तो आई। अब शायद नेक्स्ट टाइम पिज्जा का स्लाइस मुंह में जाती ही सबसे पहले ये बात ध्यान में आएगी। लेकिन मैम एक और इम्पोर्टेंट बात जैसे आती है कि कोरोना के टाइम पे फिजिकल हेल्थ तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन देखा गया है कि बहुत लोगों में मेंटल हेल्थ के इश्यूज आए, जैसे डिप्रेशन बिल्कुल। में देखा गया। एक तो हाँ, घर हाँ। लोग घर में एकदम कैद होके हो गए, और जिन हुँ, लोगों को कोरोना हुआ वो हुँ, लेट हो गए, बीमारी थी, फिजिकली वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी थे, वीक थे, हुँ, तो ऊपर से हुँ, उनको एकदम आइसोलेट कर दिया गया। तो ये हाँ। जैसे इस पेंडेमिक में अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे हम स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं हमें? देखिए, मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप सब मानते होंगे। क्योंकि अगर आप फिज़िकली रूप से आप अच्छा महसूस तभी कर पाएँगे, जब आप मेंटली अच्छे होंगे। कई बार हम एकदम अच्छा-सा फ़ील नहीं कर पाते, मतलब स्वस्थ हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, तो हम जो नॉर्मल डेली रूटीन्स होते हैं, उन्हें भी हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। ऐसा ज़्यादातर देखने में आता है कि हम बहुत ज़्यादा थकान फ़ील कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा लेथार्जी फ़ील कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल टास्क हैं डेली लाइफ़ के, वो भी नहीं कर पाते। तो जब हम मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, आप अगर थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहे हैं और उसी टाइम पे आप अपने मेंटल प्रोसेस में से थॉट हटा दें कि मैं परेशान हूँ और फुर्ती से काम करने लग जाएँ, थोड़ी-सी वॉक कर लें, थोड़ा-सा रन कर लें, बच्चों के साथ खेल लें, तो आपके जो परेशानी का जो विचार चल रहा था मन में, वो हट जाएगा। ऐसा होता है सबके साथ में ही। तो एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज़ करने से हमारे माइंड में एक हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसे कहते हैं डोपामाइन। ये हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर फ्रेशनेस की और हैप्पीनेस की फीलिंग लेकर के आता है। इसके साथ-साथ जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं, तो स्वेटिंग होती है। हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, वो बर्न आउट हो जाती है। तो उससे भी हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। तो पहली चीज़ तो हुई एक्सरसाइज़। दूसरा हो सकता है योगा या प्राणायाम। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हैं, जैसे कपालभाति है, भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम-विलोम है या सिंपल आप अ, लंबी-लंबी गहरी साँसें ले रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा-सा डाइवर्ट होगा और इससे जो आपकी ब्रेन की क्षमता है, जैसे कंसंट्रेशन पावर है, एकाग्रता की जो क्षमता होती है, वो उससे बढ़ेगी। तीसरा, क्योंकि हम डाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम हमारी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं या विटामिन बी 12 है, इसे अच्छी मात्रा में ले रहे हैं, तो जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम है या जो लॉन्ग टर्म डिप्रेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है, उससे हम बच सकते हैं। अब ये बात आती है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा कैसे? एग्जैक्टली, है हाँ, ना? ये ऐसा क्वेश्चन। तो नहीं है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें एज़ इट इज़ मार्केट में मिलता है, उसको हमने लिया, कंज़्यूम किया। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिन लोगों को लॉन्ग टर्म डिप्रेशन होता है और क्योंकि जब हम डाइट को लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो डाइट और मेडिसिन में यही एक फ़र्क है कि मेडिसिन तो तुरंत इफ़ेक्ट करती है ना? और जब आप डाइट ले रहे हैं तो डाइट जो है वो एक प्रिवेंटिव मेजर है। मतलब आपको लॉन्ग टर्म तक धीरे-धीरे वो फूड आइटम्स कंज़्यूम करने होंगे, जिससे बॉडी में जाके जो न्यूट्रिएंट रिज़र्व हैं, वो स्टोर हो सके और फिर वो आपको शरीर को बीमारियों से बचा सके। जबकि जब हम मेडिसिन की बात करते हैं, तो वहाँ क्या आता है कि आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी है, कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, उस प्रॉब्लम को आपको दूर करना है, इसलिए हम बाहर से ड्रग्स या मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है? तो जब हम ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात करते हैं, तो अगर आप हेल्दी ऑयल्स ले रहे हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, सेफ्लॉवर ऑयल है, ये आप ले रहे हैं या वॉलनट्स, अखरोट जो होते हैं, वो आप अपनी डाइट में ले रहे हैं, तो आपको ओमेगा 3 की मात्रा की पूर्ति हो जाएगी। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे बिस्किट्स हैं और जो
ये हॉर्लिक्स है, बॉर्नवीटा है, इन पे ऐड आता है विद DHA, या हाँ विद EPA, है ना। बहुत सारे बिस्किट्स पे भी आता है, ड्रिंक्स पे भी आजकल आने लगा है, कुछ ऑयल्स में भी आता है कि एडेड विटामिन डी, एडेड कैल्शियम, एडेड आयरन। तो ये क्या है, ये एक तरीके का फोर्टिफिकेशन है, क्योंकि हर व्यक्ति हर तरीके का फूड कंज्यूम नहीं कर पा रहा है डिफरेंट कारणों से। जैसे कई जगह पर अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हर तरीके की चीजों को। तो क्या किया गया कि जो स्पेशल जिनकी जरूरत है बॉडी को ज्यादा, उनको ऐड कर दिया गया कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स में, और अगर आप वो कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको उन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। राइट मैम। मैम कुछ चार्टेड अकाउंटेंट्स का भी कुछ क्वेश्चन थे जो हाँ बेसिक जी। पूछना चाहते हैं। जैसे हमारे एक मेंबर ने पूछा है, हाउ टू इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम इफ B12 इज लेस, और वो वेजिटेरियन है और वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपना इम्यूनिटी सिस्टम अगर उनका B12 कम हो। डाइट चार्ट है वो तो होता है इंडिविजुअलाइज्ड। जैसे खांसी की अगर आपको समस्या है 4 लोगों को, तो 4 लोगों के लिए खांसी की टैबलेट सेम नहीं हो सकती है ना। तो ऐसे ही वो फिर भी सेम हो जाए, लेकिन डाइट चार्ट कभी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की हाइट अलग होगी, हर व्यक्ति का वेट अलग होगा, उसके डिफरेंट जो बॉडी मेजरमेंट्स हैं वो अलग अलग होंगे, उसको जो बीमारियां हैं वो अलग अलग होंगी, और शरीर में जो न्यूट्रिएंट का लेवल है वो अलग अलग होगा। तो जब हम डाइट चार्ट बनाते हैं तो डाइट चार्ट एज अ होल होता है, मतलब उसमें आप केवल B12 नहीं देंगे, उसमें हम एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो डिफरेंट एडवाइजरी बॉडीज हैं, जैसे ICMR है, FAO है, WHO है, जो न्यूट्रिशन के लिए गाइडलाइंस बना रहे हैं, उन्होंने RDA प्रोवाइड किए हैं हर एज के हिसाब से, जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कहलाते हैं, कि एक व्यक्ति को एक दिन भर में क्या खाना खुराक लेनी चाहिए। ठीक है। तो जब हम डाइट चार्ट की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिक होगा, हम पर्सन के सारे मेजरमेंट्स देखेंगे, वो ब्लड पैरामीटर्स भी देखे जाएंगे साथ साथ में, और फिर उसके लिए डाइट चार्ट बनाते हैं। हाँ, पर जब हम इन जनरल बात करते हैं तो हम ये जरूर बता सकते हैं कि पर्सन जो खाना खा रहा है उसमें वो क्या चीजों को ऐड कर सकता है। तो इसी तरीके से जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो इम्यूनिटी केवल और केवल B12 से नहीं बनती है ना। इम्यूनिटी बनाने के लिए जो इम्यूनिटी की सेल्स हैं, जैसे हमारे शरीर में जितनी भी सेल्स हैं वो सब मेनली बनती हैं प्रोटीन से। ठीक है। अगर आप सही तरीके से प्रोटीन ले रहे हैं, रिकमेंडेड अमाउंट में प्रोटीन ले रहे हैं, जैसे दिन भर में एक अडल्ट व्यक्ति को 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, और ये 60 ग्राम प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो दूध से पूरी होगी। दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं वो आप ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, और जब अनाज और दाल कंबाइन करके लेते हैं, जैसे अगर हम इंडियन डाइट की बात करें तो हम हमेशा कहते हैं, पूरे इंडिया में साउथ इंडियन की बात करेंगे तो वहां पे दाल और चावल की बात होगी, जितनी भी चीजें बनी हैं वो दाल और चावल से ही बनती हैं। और अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो वहां हम दाल और रोटी की बात करेंगे, कि हमारी डेली डाइट इन दोनों के बिना पूरी नहीं होती, कभी भी हम केवल रोटी नहीं खाते, केवल दाल नहीं खाते। तो ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, जो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, जिसे हम हाई क्वालिटी प्रोटीन कहते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो अगर आप हाई क्वालिटी प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन आपको शरीर में पूरा मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप सब्जियां खा रहे हैं अच्छी मात्रा में, जैसे दिन में 1 कटोरी सब्जी खानी चाहिए, शाम को 1 कटोरी सब्जी खानी चाहिए, तो जितने भी विटामिन और मिनरल्स हैं वो आपको केवल और केवल फल और सब्जियों से मिलेंगे। ये आपको दाल से नहीं मिलेंगे या अनाज से नहीं मिलेंगे। दूध और दूध से बने पदार्थ में कुछ मिनरल्स मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। तो अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो बैलेंस डाइट के हम 5 कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जिसमें आता है फल, सब्जियां, दूध, दूध से बने हुए पदार्थ, दालें, अनाज, और इसके साथ स्मॉल अमाउंट में हम बात करते हैं शुगर्स की। शुगर में भी हम नेचुरल शुगर की बात करते हैं, जैसे आपने गुड़ ले लिया या आपने शहद ले लिया, या फिर जो नॉन रिफाइंड शुगर होती है जिसे शक्कर भी कहते हैं,
उसकी बात करते हैं। हम कभी भी जो रिफाइंड शुगर है जिसे हम चीनी बोलते हैं या व्हाइट शुगर जो हम घरों में प्रयोग करते हैं उसकी एडवाइस नहीं देते हैं, क्योंकि जब हम रिफाइनिंग प्रोसेस की बात करते हैं, ये थोड़ा सा अलग हो गया लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम रिफाइनिंग की बात करते हैं, चाहे वो ऑयल्स की बात हो, रिफाइंड ऑयल्स हो या रिफाइंड शुगर्स हो, इन सब के लिए हम ब्लीच करना पड़ता है इनको, और उसमें केमिकल्स यूज होते हैं। केमिकल्स यूज करने के कारण ही इनका जो नेचुरल कलर है वो हट जाता है और हमें एक ब्राइट और अच्छा कलर दिखाई देता है। जैसे अगर आप तेलों की भी ऑयल्स की बात करते हैं, तो ऑयल्स में भी जो रिफाइंड ऑयल्स होंगे उनका कलर अलग होगा, उसमें से जो ऑयल की एक्चुअल स्मेल है वो चली जाती है। और वहीं आप जो एक्चुअल तेल है, जैसे हम कच्ची घानी का तेल बोलते हैं, जो घानी में पहले निकलते हैं और फिर उनकी प्रोसेसिंग होती है, उनमें स्मेल भी होती है और कलर भी होता है, पर वो ज्यादा हेल्दी होते हैं क्योंकि उनमें केमिकल्स ऐड नहीं होते। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स ये कहते हैं कि आप रिफाइंड ऑयल लें तो उससे आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, जबकि देखा जाए तो वो जो हार्ट खराब हो रहा है लोगों का, वो इसी वजह से हो रहा है कि वो रिफाइंड ऑयल ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। या जो डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है आज के टाइम पे ज्यादा, वो इसीलिए है कि हम रिफाइंड शुगर ज्यादा प्रयोग करते हैं। अगर हम थोड़े समय पहले की बात करें, जब हमारे मम्मी पापा थे या दादाजी दादाजी थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, वो लोग ये वाली चीनी कम खाते थे, जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनको ज्यादा कंज्यूम करते थे, तो इस वजह से वो इतने बड़े हो गए फिर भी उनमें डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है। और आज के टाइम पे 30 साल के 40 साल के व्यक्ति में भी डायबिटीज होना शुरू हो गई है या हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो वो एक तरीका है। और जो आपने बात की थी विटामिन B12 की, B12 बेसिकली नॉन वेजिटेरियन डाइट में ही मिलता है। आप उसको वेजिटेरियन डाइट से नहीं ले सकते क्योंकि वो उसमें होता ही नहीं है। तो जो वेजिटेरियन व्यक्ति हैं वो मिल्क प्रोडक्ट्स अगर कंज्यूम कर रहे हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो विटामिन B12 की पूर्ति उन्हें वहां से हो जाएगी। तो आप अगर आप दही खाते हैं, आप पनीर लेते हैं, आप मावा खाते हैं, या इससे बनी हुई कोई भी चीज ले रहे हैं, तो आपको विटामिन 12 B12 की पूर्ति वहां से हो जाएगी। ओके, हाँ, थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक हमारे मेंबर का क्वेरी आंसर होगी। एक और मेंबर ने हमसे यहाँ पे पूछा है कि वो प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर खाना खाते हैं, प्रॉपर टाइम पे खाते हैं, लेकिन उनका वेट गेन नहीं हो पा रहा, और हम्म वो आपसे कुछ सजेशन चाहते हैं अपनी अपनी डाइट में कोई चेंजेस जो उन्हें करने चाहिए ताकि वो वेट गेन कर पाए। वो भी देखिए, हाँ, ये तो वही बात हो गई इंडिविजुअलाइज्ड वाली। उनका वेट कितना है एट प्रेजेंट, उनको वेट कितना गेन करना है, हाइट एट प्रेजेंट कितनी है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर हाँ, अगर वो बहुत ज्यादा ऑयल्स नहीं लें अपने खाने में, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वो प्रॉपर लें, जो अनाज दाल वगैरह है वो लें, अंकुरित अनाज अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, पनीर शामिल कर सकते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उन्हें वेट गेन होगा, अगर ये एक नॉर्मल ही प्रॉब्लम है। और अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उसके लिए फिर बिना पैरामीटर्स को चेक किए हुए या बिना बॉडी चेकअप के हम ये नहीं बता सकते कि उनका वेट गेन क्यों नहीं हो पा रहा है। मैम आपने बात तो एकदम सही की कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। जैसे एक हाँ। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वो कुछ नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, लिमिटेड खाते हैं, फिर भी उनका वेट गेन हो रहा है, तो वो नहीं, मतलब लिमिटेड, वो हो सकता है कि वो ऑयली फूड ज्यादा ले रहे हो। इट मे बी पॉसिबल कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो। जो एक प्रॉब्लम आ रही है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और जितने भी अर्बन पीपल हैं, मतलब हम सब लोग जो शहरों में रहते हैं, वो इससे सभी प्रभावित हैं। ऑफिस का काम होता है, आपके पास कोई ऑप्शंस ही नहीं है, लाइफस्टाइल बिल्कुल इस तरीके की हो गई है कि सुबह उठते ही आपको तुरंत जाना है, आप एक्सरसाइजेस के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, जो एक नॉर्मल नेचुरल लाइफस्टाइल होनी चाहिए उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो इस वजह से भी हमारा जो वेट गेन है वो हो रहा है। कई लोगों में ये होता है कि अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं बराबर, रेगुलर वाटर इनटेक नहीं है, तो भी वेट गेन होगा। पानी पीने का तरीका सही नहीं है तो भी वेट गेन होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वेट गेन हो सकता है। और अगर आपकी जो
डाइट है वो अनहेल्दी है, मतलब कि आप कम खाते हैं, जैसा उन्होंने कहा वो कम खाते हैं, लेकिन अगर वो कम ही बार बार खाते हैं, फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं, और जो चीज कम खा रहे हैं उसमें वो क्या इंक्लूड कर रहे हैं, इस वजह से भी वेट गेन हो सकता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, पानी खूब पिए, दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी कम से कम पिए। खाना खाने के आधा घंटे पहले पानी पी लें, खाना खाने के बीच में पानी अवॉइड करें, और खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिए लगभग आधे घंटे तक। तो ये अगर आप रूटीन फॉलो करते हैं, एक सुबह सुबह उठते ही, जैसे ही आप उठते हैं तब 2 से 3 ग्लास गुनगुना पानी पी लें, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपका जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा। अगर शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर हो पा रहा है तो भी वेट गेन नहीं होगा। इसके साथ साथ खाने में सलाद ज्यादा से ज्यादा खाएं, जो रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे जो आप कच्चा खा सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लें। ऑयल कम से कम कर दें, फ्राइड फूड्स जो हैं वो कम कर दें, और जो स्प्राउट्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। जो दालों को आप अंकुरित कर लें, उसको आप थोड़ा सा टेस्टी भी कर सकते हैं, आप उस पे थोड़ा सा नींबू निचोड़ सकते हैं, थोड़ा सा उसमें मसाला डाल दीजिए, चाट मसाला हो गया हल्का सा वो डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अपनी डाइट में इंक्लूड करने का। मैम ये तो समझ आ गया, जैसा कि आपने बताया कि सलाइवा जरूरी है, तो जब तक खाना टेस्टी नहीं होगा तो सलाइवा बनेगा नहीं, तो हाँ सलाइवा नहीं बनेगा तो जो खाने का जो न्यूट्रिएंट है भी, तो वो हमारी हाँ बॉडी नहीं करता है। हाँ तो इसीलिए ये चीजें तो हमें आपकी समझ में आई कि चाहे खाएं कम, अच्छा खाएं लेकिन टेस्टी खाएं। तो ये तो हाँ। आज का मैं सबसे बड़ी अच्छी लाइन जो आज मैं सीख के जा रही हूँ। देखिए, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना कि आप खाने को टेस्टी कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पनीर की सब्जी की बात करते हैं, पनीर की सब्जी बनाने के लिए जो आप तड़का लगा रहे हैं उसमें अच्छा सा तेल लेते हैं, है ना, खूब सारा आपने तेल लिया या घी लिया या बटर लिया, कोई भी ऑयल का मीडियम होगा, उसमें आपने तड़का लगाया, फिर आपने पनीर की सब्जी बनाई। आप उसको हेल्दीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो ऑयल की क्वांटिटी है या घी की क्वांटिटी है उसे थोड़ा कम कर दें, और वो रिच फ्लेवर देने के लिए जो कर्ड होता है दही, आप पहले उसको थोड़ा सा हैंग कर लो, मतलब कपड़े में बांध के आप टांग दो उसको, जिससे जो पानी है वो निकल जाए, और फिर उस कर्ड को आप यूज कर सकते हो उसमें। तो उससे क्या होगा, उसका जो फ्लेवर है वो भी अच्छा हो जाएगा, और वो रिच भी होगा। गार्निशिंग जो आप एक्स्ट्रा नट्स डाल के करते हैं उसकी जगह वो काम कर्ड कर देगा। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना हेल्दी होना चाहते हैं, कितना हेल्दी खाना चाहते हैं, और जो अनहेल्दी ऑप्शंस हैं उनको कैसे हेल्दी ऑप्शंस में कन्वर्ट करते हैं। मैम ऐसे तो बहुत सारे सवाल भी हमारे पास है और आपके पास भी पूरा ज्ञान का भंडार है, तो अगर बैठे काफी कुछ जानने का मन है अभी आपसे, कितनी चीजें हम हेल्दी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या हर चीज खाने का क्या टाइमिंग होता है, लेकिन हम्म समय की पाबंदी है और हम्म हमें सेशन को वाइंड अप करना है। अगर फिर कभी हमें मौका मिलता है तो जरूर हम आपसे और भी जानकारी लेना चाहेंगे। और आज के सेशन में आपने हमें बहुत अच्छी जानकारियां दी मैम। सबसे पहले जो नॉर्मल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन थे, उनके आंसर से हमें काफी हेल्प मिलेगी, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सारे जयपुर ब्रांच और जितने भी मेंबर्स जो अलग अलग जगह से, अलग अलग लोकेशन से आज ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको काफी कुछ जानकारी मिल पाएगी कि हम अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, अपने डाइट में हल्के फुल्के बदलाव करके हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने आप को परफेक्ट वेट में कैसे रख सकते हैं। जिनका वेट नहीं बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ाएं, जिनका वेट नहीं घट रहा है वो कैसे घटाएं। तो it was a very interesting session, ma'am. Thank you so much for the valuable time you have devoted for us. थैंक यू अनुश्री, एंड थैंक यू जयपुर ICAI। And thank you, Payal, ma'am, for the introduction. Thank you so much. थैंक यू पायल मैम। Thank you, ma'am. It was a very, very informative session. आपने थैंक जो यू। छोटे छोटे बताए हैं पॉइंट्स, वो हमें वाकई में अपनी फैमिली के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओके मैम। Finally, I'd like to extend my heartiest thanks and gratitude to the ICI Jaipur branch for organizing this session, and also my thanks to Harpreet ma'am for coordinating the whole event. So here I wind up the session for today, and I wish all the members of ICI and all my fellow members in this conference a very healthy life and a corona-free time ahead. So thank you to all,
and have a very beautiful day ahead. Thank you, ma'am. Thank you so much.